नमस्कार 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 being recorded. नमस्ते सर। नमस्कार। अरुण जी क्या बात है अरुण जी। यस सर यस सर यस सर, मजा आ गया। वाह 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 वाह। विमेन पावर, नीति एंड शालू। यस सत श्री अकाल। कैसी हम? शालू का तो नाम इतना बड़े गाने के बीच में आया, ज्यूल थीफ वाज द फिल्म, और उसमें होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। चाहे वो बात जो दुहाई है दुहाई, उसमें शालू का नाम आता था। Yes sir, yes it is. कितना मशहूर नाम है, देखिए आप। So humble. ये आपकी वाह, वाह। आपकी पंजाबन कुड़ी आपको हेलो कर रही है, नीति अरोरा। सर हो गया, मैं ऑलरेडी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हो गया सर। एक पंजाबन, बड़ी मजाकन। नमस्ते अरुण जी। नमस्ते अरुण जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे मेरा संजय नहीं आया, संजू नहीं आया। संजय सर तुसी अच्छे तो ਅਸੀਂ किथे जावांगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। और हमारी डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर बीच में बैठी है। कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है। अरे रवि कला दिखाई नहीं रही है आपको। क्या बात है सर, मुझे देख ही नहीं पा रहे हैं आप। हाय 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 हाय, क्या बात है। नहीं, मैं देख रहा हूँ सिर्फ शालू को और नीति को, एंड वन जेंटलमैन इज देयर, हर्ष जी हैं। या और कहाँ है मेरे यार दोस्त, कहाँ है? आई कांट सी देम। अच्छा, पार्टिसिपेंट। हाँ अच्छा, चलिए अब काम करते हैं। वी विल हैव टू स्टार्ट। हम अभी अनूप जलोटा जी का वेट नहीं करेंगे सर। अच्छा, therefore एक तो आप रिकॉर्डिंग आप अगले 5 मिनट में स्टार्ट कर सकते हैं। Good morning in Canada, good afternoon in England, Europe, Africa. Hey, good evening in Asia Pacific, Thailand, India, Malaysia, Singapore. Late good evening in Australia. Hashtag Women Power, a global movement run in 25 countries around the world. The first Women Power, my mentor, Dr. Kiran Bedi, followed by, you name people, from Malini Awasthi to Pooja Bedi to Binaz Masani to Shivani Kashyap to, I don't know, I forgot so many names from the Bollywood. And 25 countries, women around the world, irrespective of caste, creed, color, nationality, and religion. That is the power of women power. Hashtag women power, a global movement. What a powerful movement started in April 2020 with a mission of 100,000 women on this platform by 2021, which we achieved in 2020 itself. And another mission, 1 million women in the world on this platform by 2024. We have almost crossed 700,000 women around the world. And this hashtag Women Power, a global movement, became so powerful, so beautiful, so meaningful, that today, when I am here with something very exciting, very thrilling today. Because today is something very different happening on this Women Power. In fact, I remember Arunji came on this platform when Simran Ahuja, our Miss India, was on the show, and Arunji was actually doing some work with her, and he also came on our show. That was salutes to you, Arunji. The power of cheese. And then Arunji came on my show, hashtag New DNA of Leadership, wherein all army generals, police generals, CHROs, CEOs, even Anupam Kher, even recent one was our Kabir Bedi was there last week. That show again, Arunji came. So powerfully, I'm excited. But before starting, Harsh and Anunshi, you can move. Can we start the Women Power song, which has been launched on 5th of March, 2022. Let's look at this song, sir.
This is where women stand with power and equality, thinking of a future with success and reality. This is where women stand with power and equality. To be a woman, pride is real as they spread love and care. In them you see a mother for all and everywhere. To be a woman, pride is real as they spread love and care. In them you see a mother for all and everywhere. Thinking of a future with success and reality. This is where women stand with power and equality, thinking of a future with success and reality. This is where women stand with power and equality. Here's the woman. Woman is here. Tough challenges they face, they still come out as winners. Perseverance is infectious, they're perfect and not just beginners. Tough challenges they face, they still come out as winners. Perseverance is infectious, they're perfect and not just beginners. We celebrate this power. We celebrate each woman. Global talent is all for strength. We stand with today's women. From any nation. Through their positivity, women are the strength of family. With power, they drive nations and empower communities. They reflect compassion, nurture pride and passion, strong conviction in partnerships. They carry courage in relationships. They are called symbols of care. They show strength everywhere. Women presence is power, a relationship like no other. We celebrate this power. We celebrate each woman. Global talent is all for strength. We stand with today's women. Bring us back. Thank you so much, Anushri, for sharing Fantastic. the screen. This is the Fantastic. Women Power song, Arun ji, Ravi Fantastic. Kala ji, and Sanjay ji. This Yes, was launched on 5th of March, very close to International Women Day in Delhi by Dr. Kiran Bedi. And we had celebrities like Salma Sultan, Shivani Kashyap, Pinaz Masani. We had Pooja Bedi, we had Pallavi Joshi, and we had women of different corporates with us, 150 women. And this is a global song sung by a Thai Indian girl called Aruni Baga, who is born in Thailand to a Sikh family, and she sings for Bollywood as well as Thai songs. And this is the Fantastic. power of this women. Arun ji, kaisa laga? बहुत बढ़िया सर. It's full of motivation. It's really fantastic. मुझे तो ये पूरा गाना देख के एक चेहरा याद आ गया और मैं उसका नंबर आपको दूंगा. She has to be there over there in this song. उनका नाम है अरुणा ईरानी. A dear Yes. friend. आप उनका शुमार भी इसी गाने में होना चाहिए क्योंकि वुमेन पावर जो उन्होंने क्रिएट की है, हमारी दोस्त हैं, हमने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है.
In couple of films, she played my wife also, and she is a big sister like also, a big daughter like also, a fantastic persona. On this webinar, I would like she should also be included in this. I'll give you the number of Aruna Irani ji. I think she's marvelous. She will represent. She will represent. Wonderful, wonderful. बहुत अच्छा लिखा है, बहुत nice of you. बहुत अच्छा गाया है, और आप क्या है कि you are a force behind the show. उसमें आपकी इनपुट्स कितनी हैं, वो देखने को मिलती हैं. इसी बात पे जो शालू ने स्माइल की है, वो बहुत जानलेवा थी. डॉक्टर बख्शी साहब, और शुरुआत करते हैं. हाँ जी, पहले मैं I would like to introduce, ladies and gentlemen, I would like to introduce my stars from the Bollywood today to this show. Let me give a quick brief of what is today's show. It's a very special day for me personally at Women Power, at Global Moment. We are today having with us a star cast of Bollywood movie, which is to be released on 26th of August. Only No. The 2nd September. 2nd September. Second Okay, September. I We thought have it was a premiere on 1st of September, and next year we are releasing film. Okay, second. Okay. And you know, this movie name is Token the Treasure. And movie songs have already made waves, not only in India, even global community of NRIs. I sent myself that song to almost 40 countries because I am part of almost 40 countries in terms of connectivity. Today we have this show dedicated to this movie, and we have named this show as Safar Ghar Se Treasure Tak, because this is something very different. And in this interaction, I am co-anchored by two powerful women power of Global Talent Company, Niti Arora and Shalu Pillai. And they work with me, and they will also have some questions. In fact, we certainly are looking forward to have the honor of our friend, our Bhajan Samrat, Padma Shri Anup Jalota ji. He will be joining us soon, and we are actually looking forward to meeting him. But the man behind this is Arun Bakshi Sahab. Ye to hum naam hai. Again, who doesn't know him? Actor, singer. You know, from Mahabharat fame, then you can see anything and everything possible on earth. His energy, ek murde ko zinda karne wale bande. Arun ji has 298 movies, 400 songs of elegance, powerful brand. And even in COVID days, he created some of the songs which were so hit. And I was myself involved in promoting that. And also, सबसे पहला इनका जो है बहुत ही बड़े देशभक्त है. मैं अंग्रेजी और हिंदी में बता रहा हूं ताकि मेरी क्राउड दुनिया में बहुत इंग्लिश और हिंदी के सुने. और उसमें कोविड में even for the army, he created great songs. देशभक्ति के इनके इतने powerful songs आए during COVID also. And those songs are also good. As I said earlier, he came on my show on twice, Women Power as well as New DNA of Leadership. उस New DNA of Leadership में इनकी मैंने पूरी journey of excellence को map किया था. I have the pleasure of welcoming this wonderful woman today, the Women Power of Elegance, Ravi Kala Gupta ji. अरे क्या अभी तो मूवी देख के पता चलेगा. The writer and the director of this movie. आज तो आपको इस मूवी के बारे में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो नीति अरोरा और शालू है, इन्होंने बोला इसका नाम सफर घर से ट्रेजर तक रखेंगे. तो ये आपका जो ये नागिन वाला सॉन्ग ऑलरेडी पावरफुल चल रहा है. Thank you. इसलिए इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर. एंड क्या बताएं, Thank you so much. मैं तो जय संतोषी माता से इस संजय को देख रहा था. मुझे कहाँ पता था ये स्टेइंग अलाइव वाला ये संजय स्वराज इतना पावरफुल ब्रांड है
कि ये मैडम रवि कला इनको ऐसे नचाएगी और जसलीन के साथ ऐसे नाचेंगे. I never knew. That's what I was asking him today. Having said that, so we have a very great panel with us who are going to be part of us, and we are going to share thoughts. So मैं सबसे पहले I would like to invite Niti. Please go ahead with your question with whoever you want to have. Niti Arora ji. पहले हम थोड़ा सा अरुण जी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. क्वेश्चंस के बाद फिर हम अपना वार्तालाप डायरेक्ट करेंगे. हाँ जी. Niti, you are muted. Yeah, sir. Arun sir, welcome to our show again. Thank you. Thanks a lot. It is indeed a pleasure to see you again on our show, and you are like a family member of ours now. Oh yes, goes without saying. Bakshi sir keeps on talking a lot about you whenever we talk about Bakshis. Yes, thank you. Thanks a lot. So I understand and I can see you are a versatile actor with huge body of work and a singer. So what is more closer to you, singing or acting? अगर एक सांस जाती है तो वो सिंगिंग है, सांस बाहर आती है तो वो एक्टिंग है, फिर अंदर जाती है, सांस जाती है, वो इनहेल जो है, एक्सेल है, वो सारा सब कुछ यही है. So it is both ways, inhale and exhale. या एंड लेट मी टेल यू, हम लोग सारे चल्ले बिरादरी हैं. हमारी बिरादरी चल्लों की है. Punjabis are like that only. कलाकारों की जो बिरादरी है, यहाँ पे सारे चल्ले बैठे हुए हैं, पगले बैठे हुए हैं. ये बख्शी साहब इज एपिटोम, माई सेल्फ इज एपिटोम, और वो जो संजय स्वराज है वो बहुत सीरियसली बैठा होगा, लेकिन सब चल्ले कट्ठे कीते हैगे ने. एवरीबॉडी इज रूल्ड बाय हार्ट, नोबडी इज रूल्ड बाय ब्रेन. दिल से सोचते हैं और शहनशाही लाइफ है, कोई बात ही नहीं है. लाइफ बड़ी खूबसूरत है और यही कोशिश रहती है कि दूसरों की लाइफ भी हमसे मिलके और ज्यादा उनकी अच्छी हो. यही खूबसूरती, यही पैगाम है लाइफ का. So I'll not intervene right now, but I will request you end of the day. मुझे आपसे जो सॉन्ग सुनने हैं आपके कुछ सर. I'll not interrupt you right now. Let's continue with our question section. चालू, your next question. किनसे आप सवाल करना चाहते हैं? Yeah, sure. So first of all, तो I would like to say thank you to everyone कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं स्टार कास्ट के साथ में इंटरेक्ट कर सकती हूँ. मेरा क्वेश्चन है फॉर रवि कला मैम, फॉर यू मैम. जैसे हमने इस अपना सेशन का टॉपिक रखा है सफर घर से ट्रेजर तक, बिकॉज वी नो दैट यू हैव टेकन दिस जर्नी फ्रॉम very basics, right? You were a housewife and now you have taken a step forward and now you have written this movie script and directed this movie as well. So ma'am, I would like to know, of course, your journey कि कैसे ये idea create हुआ, कैसे ये journey आपने घर से treasure तक तय की. Ma'am, please कुछ बताइए इसके बारे में. Interesting journey, really. We would like to hear from you. Okay. So बिफोर गेटिंग मैरिड मैंने कुछ मॉडलिंग की थी, एक्टिंग की थी. फैमिली फ्रेंड्स ने मुझे एक फिल्म में दे दिया था काम, लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव. तो मैं उनसे बोलती, वो मुझे बोलते कि आप फोटो सेशन में आ जाना, अपने लुक टेस्ट देना. मैंने कहा क्या मैं आपके राइटिंग सेशन में बैठ सकती हूँ प्लीज? तो दे यूज्ड टू गिव मी दैट लुक, अरे आपको क्या करना है राइटिंग सेशन में बैठकर. आई यूज्ड टू फील ऑफेंडेड कि क्यों नहीं मैं बैठ सकती, क्यों अपना सजेशन नहीं दे सकती. तो फिर शादी हो गई, बच्ची हो गई मेरी, अब काफी बड़ी हो चुकी है. तो फिर अब सोचा कि ये क्यों नहीं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ बॉस, नॉट बॉसी, बॉस, कि मैं अपने काम में खुद कुछ कर सकूं, कोई मुझे सवाल ना पूछे, कोई मुझे इंटरफियर मेरे काम में ना कर सके. तो मैंने कहा यस, आई बी राइटिंग अ स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टिंग दैट स्क्रिप्ट ऑन माय ओन. तो ऐसी छोटी छोटी कहानियां लिखती. लेकिन एक बार मैंने वो कुकिंग, मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया कुक हो गया. लकीली यूनिवर्स से पता नहीं कहां से कुछ ऐसा आया जो कुक हो गया. उसको मैंने उसका वन लाइनर तैयार किया. फिर धीरे धीरे काम करते हुए, हाँ, जैसे खाना बनाते हुए हो गया,
डस्टिंग करते हुए हो गया या बच्चे को रेडी करते हुए हो गया, मुझे जो जो ध्यान में आता था मैं उसको नोट डाउन कर लेती, और जब मैं सारे काम खत्म कर ली थी तो मैं उस स्क्रिप्ट को डेवलप करती। जब मैंने स्क्रिप्ट को डेवलप किया तो संजय जी हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं, लवली लवली पर्सन, थैंक यू संजय जी, इन्होंने मुझे बहुत एनकरेज भी किया। तो एक बार हम लोग ऐसे ही फैमिली डिनर पर बैठे हुए थे तो मैंने कहा भैया मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ संजय जी। तो मेरे हस्बैंड ने लुक दिया, क्यों, कुछ फायदा तो होगा नहीं, क्यों खामखा अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रही हो ये वो। फिर भी मैंने सुना दिया कि दिस इज वन लाइफ, और संजय जी ने बड़ी ही सीरियसली मेरे सब्जेक्ट को सुना, खाना भी खा रहे थे लेकिन सब्जेक्ट उन्होंने सुना और उनको बेहद पसंद आया कि इस पे तो रियली फिल्म बननी चाहिए। अप्रूवल मिल गया, फिर हस्बैंड ने भी बोला अच्छा चलो ठीक है, इनको अच्छा लगा तो शायद और भी लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन वो एक जस्ट इंसेप्शन था। स्टोरी कंप्लीट करने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, इसको पूरे 6 साल लग गए मुझे प्रोड्यूसर को पाने में, 6 long years and relentless fight। मैं रुकी नहीं, अगर किसी ने ना बोला होता तो ठीक है, इनके लिए ना है, मेरे लिए कहीं और कोई ना कोई तो कोई होगा जो इस फिल्म को बनाएगा। और फॉर्चुनेटली फिर 6 साल बाद मैं अनूप जी से मिली और हम सब साथ में बैठे थे, मेरे हस्बैंड भी, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुना, उनको बेहद पसंद आया। तो उन्होंने धीरे से बात करते हैं, जोर से तो करते नहीं है, मैं बोला चलो फिल्म बनाते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को देखा, मैंने कहा क्या बोला इन्होंने अभी? बोले चुप रहो, इन्होंने ये कहा कि वी विल बी प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म। Oh my God. आप सोचिए सिर्फ किचन में स्टोरी बनाते बनाते, पूरे घर के काम करते करते उसको डेवलप करना, और कहीं इतने बड़े भजन सम्राट पद्मश्री से जाके इसको अप्रूव करना वाज लाइक शॉक भी था, और सबसे खूबसूरत और सबसे खुशनुमा दिन था मेरी लाइफ का। तो ये जर्नी ऐसे पूरी की मैंने। रविकला जी, आई वुड लाइक टू से हियर, बिकॉज जैसे आपने बताया कि आइडिया आपका जो था वो किचन से डेवलप हुआ, तो जैसे होता है ना कि नारी को, स्त्री को हमेशा देखा जाता है कि वो किचन संभाले, है ना, फैमिली संभाले, बच्चे संभाले। तो वी आर नॉट डिनाइंग ऑन दैट पार्ट कि हमें वो भी संभालना है, एंड वी आर डूइंग वेरी प्राउडली, राइट। बट उस किचन को, उस अपनी एक रोजमर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने कैसे अपने करियर में डेवलप किया, राइट। आपकी जो एक इच्छा थी, आपका जो पैशन था, राइट, तो आपने फैमिली भी संभाली एक टाइम तक, 6 साल तक आपने उस चीज के लिए वेट किया। आपका पेशेंस लेवल ऑफ कोर्स कमेंडेबल, राइट। और अल्टीमेटली आपको वो अपनी जो एक ड्रीम था, जो सपना था, वो पूरा करने का चांस मिला, नो डाउट, विद मेन लाइक संजय जी आपने मेंशन किया, अनूप जलोटा जी आपने मेंशन किया, ऑफ कोर्स उनके बिना नारी भी अधूरी है, नो डाउट। तो डेफिनेटली मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग रही आपकी स्टोरी, आपने जो सफर अपना तय किया फ्रॉम किचन टू दिस ट्रेजर तक, ऑफ कोर्स, तो आपको वो खजाना फाइनली मिल गया, तो कांग्रेचुलेशंस। Thank you, God is kind, God is kind, yes. Yes, I would indeed. like to ask a question to Sanjay ji now. Sanjay ji, may I? Please, go on. Thank you so much. Welcome once again from my end. So Sanjay ji, as we have already discussed a lot about the song, so you have really danced well on the tunes of Jasleen in that powerful song of Naginwala. Your performance is making waves, as we already have discussed a lot. So how do you feel about it? Do you have such a brilliant dance performance earlier as well in your career? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। No, I am asking, would you like to highlight something more about that song, and how do you feel about that performance? See, I don't know how do I, मतलब overall I can tell you that it's a very, it's a great feeling, because ये film making जो है और ये जो total business है, it really takes so much of efforts from each and every side, and it's a very difficult thing, you trust me. अब देखने से सब कुछ बहुत आसान लगता है कि चलो एक बार में डांस कर But दिया, it's not. हाँ, लेकिन कभी कभी जब आप खुद एक एक्टर या कोई सामने देखता है डायरेक्टर के साथ बैठ के, हम देखते हैं, जैसे मैं डबिंग करने के लिए गया था तो रवि जी फिर भी स्टिल वहां पे भी शूटिंग पे वो आगे बैठी हुई है और सब कुछ संभाल रही है, और फिर डबिंग पे भी वहां बैठ के कि अब ये पूरा सारा कुछ हो, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट
if that end result is good, sometimes you know what happens is that you have done your best, everybody has done the best, but audience doesn't like it, you cannot help it. But those the people who really get appreciation from people, and from keen observers like you are a media person, and बख्शी साहब जो हॉक आइज के साथ में इतने सालों से लोगों को स्कैन करते हैं, तो डेफिनेटली अगर बोल देते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है और मजा आ रहा है, तो ये एक वाकई में हमें लगता है कि हाँ जरूर बात कुछ बनी होगी। और अरुण बख्शी जी, जिनको मैं ये मानता हूँ कि उनके पास जो इतना भारी एक्सपीरियंस उनके पीछे है, तो जब वो कह देते हैं कि यार संजू बढ़िया हुआ है, तो मतलब आई नो दैट हिज साउंड लाइक हिज साउंडिंग, ही इज नॉट फेक, ही इज नॉट शैलो एट ऑल। वो आदमी वो है जो अगर अच्छा लगेगा तो मुंह पे बोल देगा, बुरा लगेगा तो मुंह पे बोल देगा। ऐसे ही हमारी डायरेक्टर साहिबा है कि अगर इनको अच्छा नहीं लगता है तो फिर ये खामोश हो जाती हैं, ये बुराई भी नहीं करेंगी लेकिन खामोश हो जाएंगी। तो लेकिन जब डायरेक्टर साहिबा ने एक बार बोल दिया कि भैया बहुत अच्छा हुआ है, तो मतलब आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाकई में बहुत अच्छा हुआ, फिर हम आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। Yes, motivation works a lot. करेक्ट। Over to you, Bakshi sir. मैं तो अब अपने हम नाम अरुण बख्शी जी के पास जाऊंगा। अरुण जी, देखिए, I don't know what to say, but you are such a powerhouse. मुझे बताइए, आज जो माहौल है, अभी एक पिक्चर आई थी दोबारा, हाँ जी, and Bollywood माहौल है, and how do you see today this movie, a different सोनर की मूवी आपने आज जो 2 सितंबर को आप ला रहे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन बॉलीवुड? देखिए, फिल्में तो बनती रहती हैं और फिल्मों का सब्जेक्ट भी अलग अलग होता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब फिल्म बन जाए और मंजरे आम पे आने वाली हो या आ गई हो या पब्लिक डोमेन पे आने वाली हो, तो उस वक्त काउंट करता है इंसानों की जबानें। जो जबान है वो काउंट करती है। अब देखिए ये क्या हाल हो रहा है, एक पूरा ट्रेंड चल रहा है। ये आपने बहुत ही कमाल का सवाल किया है और मुझे जवाब देने में बड़ा मजा आएगा। पीपल आर आफ्टर बॉलीवुड, दे आर क्रिटिसाइजिंग बॉलीवुड। बॉलीवुड इज टू ह्यूज। अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो आप इंडिविजुअल्स को करिए, एक इंडिविजुअल, 2, 3, 4, 5, 10, लेकिन आप पूरे बॉलीवुड को नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलीवुड कभी मर नहीं सकता। बॉलीवुड कभी मर नहीं सकता जहां पे ये हो कि शो मस्ट गो ऑन। उसके पीछे इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। उसमें दिलीप कुमार साहब ने, दादा फाल्के साहब ने, दादा मुनी ने, बड़ी बड़ी हीरोइंस ने, नरगिस जी ने, कितनी बड़ी बड़ी हीरोइंस ने अपना ब्लड दिया, अपना टाइम दिया है, अपनी लाइफ टाइम दी है। राजेश खन्ना लीजिए, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, मनोज कुमार लीजिए। अगर देशभक्ति का मोड शुरू होता है तो मनोज कुमार जी के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और वहां से आपको देशभक्ति का पूरा मिलता है। बॉलीवुड कभी मर नहीं सकता है, लेकिन आजकल क्या है कि ये जो आजकल चल रहा है, ये सोशल नेटवर्किंग में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आदमी कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी गाली दे सकता है, क्योंकि वहां पे कोई सेंसर नहीं है। और दूसरी बात है, नेशनलिज्म इज एट द पीक पे है नेशनलिज्म, क्योंकि इंडिया, अगर ये ट्रांसग्रेस हो जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन इंडिया में जो जागृति है, रेनेसेंस है, जो अवेकनिंग है ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, भारतीयता, वो इतना टॉप पे है। कोई हमारे झंडे की बेइज्जती करके जाएगा कहां जाएगा? उसको घर से पकड़ के कोई भी देश होगा, उसको देश में से निकाल के उसको चौराहे पे पीटेंगे, क्योंकि हमारी शान है तिरंगा। नंबर 1। नंबर 2, as far as Bollywood is concerned, why can't our heroes, देखिए, अगर किसी ने उल्टा सीधा बोला है तो उसके पर्सनल ईगो है। दोबारा के जो लोग हैं बिहाइंड द शो, उन्होंने बोल तो दिया है,
उसके डायरेक्टर ने और उसकी हीरोइन ने बोल तो दिया है, लेकिन नुकसान एकता जी का हुआ है। पैसे प्रोड्यूसर के लगे। आपको प्रोड्यूसर के पैसे के लिए अगर आप स्पोक्समैन, अगर मैं स्पोक्समैन हूं अपनी फिल्म का, टोकन के लिए मैं अगर स्पोक्समैन हूं, आई स्पीक अबाउट माय फिल्म। मैं इधर की उधर की बातें नहीं करूंगा। यू हैव टू जिप अप योर माउथ। आपकी जो वर्बोस है उसको आपको जिप अप करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्म को ये कीजिए। सर, बातें कम कीजिए, अपनी जिहानत दिखाते रहिए। बातें कम कीजिए, अपनी जिहानत दिखाते रहिए। ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। ये तो यारों वाला चक्कर है। ये तो बॉलीवुड है जो लोगों को इमोशन से मिलवाता है। हर 15 कोर्स के बाद में लैंग्वेज बदलती है, लोगों का स्टाइल बदलता है। एंड थैंक्स टू बॉलीवुड जो आपको एक अदा देता है, स्टाइल देता है। कुछ इंडिविजुअल बख्शी साहब गड़बड़ हो सकते हैं, उनकी जबान गड़बड़ हो सकती है, उनको चाहिए, और मैं उनको वार्न कर रहा हूं, अपनी जबान पे कंट्रोल कीजिए। आप क्या बोलने वाले आपको पता नहीं। इन लोगों ने तो बोल दिया दोबारा वालों ने, और जाके वो एकता जी का नुकसान हो गया। 50 करोड़ तो होगा ही, बहुत बड़ी फिल्म है भाई, और लोग आए नहीं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा बख्शी साहब, हमारी फिल्म में हमारे पास कुछ भी वायरल नहीं है। हमारी मोहब्बत वायरल है। हमारे पास कोई भी ट्रेंड नहीं है बख्शी साहब, हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं है। हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। हमारा जो प्रोड्यूसर है अनूप जी, वो इस वक्त हवाओं में है। वो हवाओं में, प्लेन में बैठे हुए हैं। उनका एक मैसेज आया था कि मैं प्लेन में हूं, उतर, और आई एम श्योर वो प्लेन से उतरते ही सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि नहीं ज्वाइन करें। हमारा कोई बैकअप नहीं है। बैकअप आप है बख्शी जी, आपका ये है इस वक्त मोमेंट जो है वो बैकअप है हमारा। हमारी डायरेक्टर जो है उसको और कुछ नहीं पता है। उसको सिर्फ वो रोटी बनाती है, वो स्क्रिप्ट लिखती है, वो आती है, उसको टेक्निकली टेक्नीशियन नहीं है। वो एक होम मेकर है, उसने आई है, उसने एनवायरनमेंट देखी है, और ये जो फिल्म है ये इसका उस्ताद है। ज्यों ज्यों फिल्म बनती गई, हमारी जो डायरेक्टर साहिबा हैं, उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा। इस फिल्म ने अपने आप ही ग्रो किया, नेचुरल वे से ग्रो किया। और मुझे याद है कि बख्शी साहब ये फिल्म मेरी झोली में पड़ी। जो चीज, जो गाना, जो एक्टिंग मेरी झोली में पड़ती है, उसका मैं बहुत ख्याल करता हूं। मैंने इसके लिए कोई फील्डिंग नहीं की है। नीति अरोड़ा, मैंने कोई फील्डिंग नहीं की है इसके लिए। एक कॉल आया था, कॉल में ये बोला था कि एक छोटी सी फिल्म है। मैं क्या, अच्छा, उसमें आपका बड़ा सा रोल है। मैं क्या, जब मेरा बड़ा रोल है तो फिर ये छोटी फिल्म कैसे हो सकती है। उसके बाद आप देखिए इस फिल्म ने इतना ग्रो किया है, इतना ग्रो किया है। हमने आगरा में शूट किया है। आगरा में शूट किया है। जो कैमरामैन था मिस्टर कोहली, राजेश कोहली, वो नेशनल अवार्ड विनर है। उसके साथ कॉम्बिनेशन में मिलके हमारी डायरेक्टर ने, उसने कठिनाइयां देखी, तकलीफें देखी, लेकिन शी वॉज अ रॉक ऑफ जिब्राल्टर। शी स्टूड देयर। जैसे आपने इसका उन्वान इस शो का इतना शानदार रखा है, वुमेन पावर, वो पावर थी। इनके अंदर पावर है, इनके अंदर पावर है। ओनली थिंग इज कि जब देवताओं ने दुर्गा मां को पावर दी थी, किसी ने अपना खंडा दिया था, किसी ने त्रिशूल दिया था, किसी ने कुछ किया था, एक पावर इकट्ठी करके रखा, वही हम लोगों ने किया है। इधर से मैं, उधर से संजू, उधर से अनूप जी, उधर से कोई कोई कोई, उन्होंने वी मेक इट अ पॉइंट कि अपनी पावर इनको दी जाए। एंड व्हाई नॉट एक शख्सियत। और जब कोई शख्सियत बनती है, बढ़ती है, बनती है, मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन वो उस वक्त जो क्रिसेंडो पे होती है, क्रंच मोमेंट आती है, उसकी असली पहचान वही है कि अभी क्रंच मोमेंट है। क्या है आपकी पहचान? आपने अपने टेम्परामेंट को कैसे पहचाना? आपने अपने आप को कैसे रोका, अपने गुस्सों को? क्योंकि जो जो आदमी ऊपर जाता है, ऊपर जाके ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसीलिए हमारे जो सुपरस्टार हैं, हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको अस्थमा है, क्यों? बिकॉज ऑन टॉप ओनली वन, एक ही चेयर होती है। ज्यों ज्यों आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होगी।
वैसे ही शख्सियत का है। ज्यों-ज्यों शख्सियत बढ़ेगी 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 और क्रंच मोमेंट पे जाएगी, क्रिसेंडो पे जाएगी, उरूज पे जाएगी, वहां पे जाने के बाद में आप देखेंगे देखे नेचर बदलती है। तो ये जो सारा अमेलगमेशन है, ये सारा अमेलगमेशन है, इसमें बहुत सारी पावर्स हैं, हमारे न्यू कमर्स की पावर्स हैं, न्यू कमर्स की पावर्स हैं, इसमें हम सब की पावर्स हैं। इसमें मैं इतना इतना कहूंगा, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है शुभ मल्होत्रा, उसकी भी बहुत है। कभी आपने सुना है कि एक डायरेक्टर कहता है कि आपके पास वो आएंगी, आके आप अपने कपड़ों का माप दीजिए। वो माप लेने नहीं आई है, वो बना के लाई है विदाउट टेकिंग माय मेजरमेंट। और मैं देख रहा हूं कि वो जो कपड़े पहनाए हैं उन्होंने, शुभ मल्होत्रा ने, वो कमाल है, इट परफेक्ट परफेक्ट फिटिंग। और उन्होंने मतलब आके, वो शी इज फ्रॉम फैशन वर्ल्ड, अमेरिका से है, उसने आके बहुत सारी इनपुट्स दी। उनकी भी इनपुट्स इस फिल्म में बहुत ज्यादा है। और ये पर्सनालिटी बनती गई बनती गई बनती गई। और उधर से अनूप जलोटा बेसिकली इज अ मस्त मलंगी आदमी है, एक टोटो मस्त मलंगी है। और अगर ये एक सम्राट की फिल्म होगी, अगर ये सम्राट की फिल्म होगी, वो भी भजन सम्राट, तो आप ये देखिए इस फिल्म में कोई भी गाली नहीं होगी, गलौच नहीं होगी, गाली गलौच कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अगर भजन नहीं है तो अच्छी बीट होगी, अच्छा संगीत होगा। इसके दो हैं म्यूजिक डायरेक्टर, एक है रानी जिसने पहला गाना गाया भी है, और एक है दिलीप सेन, वो तो सीजन्ड है। उनका म्यूजिक, और यस, म्यूजिक के ऊपर अनूप जी बैठे थे। हमारी डायरेक्टर साहब आपको और बताएंगी, डायरेक्टर साहब हमारे अनूप जी बैठे थे। अनूप जी इज, आई हैव संग 3 सॉन्ग्स फॉर अनूप जी, तो आई नो इन आउट ऑफ, मुझे 5% भी किसी का समझ आ जाए तो मैं कहता हूं मैं धन्य हो गया। 5% मैं अनूप जी को जानता हूं, एज एन एक्टर, एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, मैं जानता हूं कितनी आजादी देते हो, छोड़ ही देते हैं। मुझे याद है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन था द क्लब में, और वो स्टेज पे खड़े हुए थे, साथ में बहुत हसीन मॉडल्स थी। आई एंटर्ड लेट बाय 5 to 7 मिनट्स। मैं एंटर किया, वहां खड़ा हो रहा था कि मेरी सीट किधर है, कोई मुझे रिसीव करेगा। उधर से आवाज आई, मिस्टर अरुण बख्शी, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन टोकन द ट्रेजर। मुझे लगा कि जैसे मुझको अवार्ड मिल गया बख्शी साहब। मतलब एक आदमी अपना सारी थिंकिंग छोड़ के मुझे बोल रहा है, अरे मैं क्या, मेरी जान, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी तपस्या का जब 1% मिलता है, उधर से एक वाणी आती है और उसमें ये होता है। और मैं चाहूंगा हमारे पास, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं है, हमारे पास कोई उल्टा सीधा हमारे यूनिट में से किसी ने बोला नहीं है। अब ये जाएगी सेकंड को। और देखिए एक और बात है, आई वुड लाइक टू, विद द परमिशन ऑफ माय डायरेक्टर, ये चीजें बन रही हैं, आप आए हैं, यू आर वेलकम इन आवर लाइफ, इन दिस फिल्म, यू आर मोस्ट वेलकम विद योर फ्रेंड्स। और आप आए हैं, सर माथे पे है। अभी इसका आज ही पता चला है कि फर्स्ट को इसका प्रीमियर भी है। हम पहले लावारिस थे, आज हमको माता पिता मिल गए, हमारी फिल्म को माता पिता मिल गए हैं, फाइनेंसिस के साथ में माता पिता मिल गए सर। अभी हमारा पूरी उसमें के साथ में फर्स्ट को हमारा प्रीमियर होगा, उसके बाद 4-5 और भी हैं। मैं आपकी सूचना के मुताबिक बोल रहा हूं मैडम मुजाइल, 4-5 और भी चीजें आ गई हैं। तो मेरा मतलब है, हमारे बैकअप नहीं है, हमारा बैकअप गॉड है सर। हमारा बैकअप आपस में हम सब लोग हैं। हम तो बड़े नाच से कहेंगे ओम नमः शिवाय, वही भोले बाबा है, ओ भोले बाबा है जिसने के पता नहीं कहां से आप जैसी प्यारी प्यारी आत्माएं भेजता है। नीति एंड शालू, बीवेयर, आप खबरदार रहिए। आज बख्शी साहब का मूड बहुत अच्छा है और आपकी सारी एक्सूबरेंस से डबल इनकी एक्सूबरेंस होगी। प्लीज टेक केयर। अरुण जी बहुत विस्तार से आपने हमें दिया। इसमें 2 चीजें, ladies and gentlemen, let me first go to audience. Ladies and gentlemen around the world who are with us right now on Facebook, on Global Talent, on Zoom, or on YouTube, or those who are going to be watching this program later.
This is something very unique. This is something very beautiful. Under the hashtag Women Power, we have done many programs, but this is brilliant, excellent, and I am really excited today, Arunji is saying. Thank you, sir. I don't know the passion, the excitement of, you know, that, I don't know what should I say, DKDG, you know, transforming into something, you know, full of confidence, happiness, HHSSC. Positivity. Complete beauty of life. बख्शी साहब, दो पॉइंट आपके, हाँ जी, दो पॉइंट हाँ जी, आपके हाँ जी। बड़े इंपॉर्टेंट आ गए। जी, एक जी। आपका इंपॉर्टेंट आ गया पॉइंट, एंड जिसको मैं बोलता हूं, जो कहते हैं ना, व्हाटएवर गोज अप कम्स डाउन। या इसका मैंने अंग्रेजी में एक अच्छा चीज बोलता रहता हूं मैनेजमेंट में, लीडरशिप पे, लुक एट पीपल व्हेन यू गो अप, लुक एट पीपल व्हेन यू गो अप, यू माइट नीड देम व्हेन यू गो डाउन। Oh, yes, yes, दुनिया का दस्तूर है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। और मैं कहता हूं उनको, लीडर्स को, कोई भी हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, फिल्म प्रोड्यूसर हो, क्रिकेटर हो, कॉर्पोरेट लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, कम्युनिटी लीडर हो, जो भी हो, लुक एट पीपल व्हेन यू गो अप, यू माइट नीड देम व्हेन यू गो डाउन। सर, महमूद साहब ने, द ग्रेट महमूद साहब, उनके साथ मेरा गिव एंड टेक बड़ा अच्छा था। उन्होंने इसी बात को विस्तृत तौर पे किया था, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की। बोले कि जब आप ऊपर जाते हो, आपकी ऊंचाई पे जाते हो, तो आपको रास्ते में बहुत सारे लोग उतरते नजर आते हैं। जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो बहुत सारे लोग उतरते नजर आते हैं। आप जा रहे हो, एक लुक दीजिए उनको, स्माइल कीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द, ये एक हल्की सी उन्होंने इसको मॉडिफिकेशन किया था। मैं तो देख रहा था महमूद साहब को कि महमूद साहब ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। और हमारा जब भी देखिए, ये शहर जो है ज्वार भाटे का शहर, ये हमारा बंबई जो है ज्वार भाटे का शहर, इसमें जब ज्वार भाटा ऊपर आता है, इसका मतलब यू आर हैपनिंग इन ए बिग वे। उस वक्त नोबडी नोज कि आपने कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, पढ़ाई लिखाई क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या, कुछ नहीं। एक्सपीरियंस का और संस्कृति का और खानदानी का पता चलता है जब आप लो टाइड में होते हैं। लो टाइड में होते हैं, फिर पता चलता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई, माता पिता, आप किसकी संतान है, माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं, उसी में जो आज का है उसमें माँ काम आती है। माँ एलिमेंट, जो रसोई, जिसके पास रसोई हाथ में आ गई, उसको पता है कि घर में कौन कौन से बंदे को कितना विटामिन देना है, कितना उसकी डाइट क्या है। वो 2 रोटी खाएगा, 2 परोठे खाएगा, 1.5 खाएगा, क्या होगा, उसके पास सब कुछ है। उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं सर, जिसके पास किचन है वो बॉस है, वो आपके पेट में जाएगा, वही आपकी सोच के पीछे होगा, चाहे वो माँ हो, वाइफ हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई भी हो। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें जब टॉप पे जाते हैं, रास्ते में रुकिए, उनको एक दम ले ले घड़ी भर, तू जाएगा कहाँ, वो इंपॉर्टेंट है, उनसे बात कीजिए। क्योंकि अब आपको जाना, ऊपर जाना है, फिर वापस आना है, फिर आपकी महफिल कहीं ना कहीं लगेगी। इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टोकन है, यही टोकन है, और यही ट्रेजर है, और यही खजाना है, यही खजाना है, यही टोकन। एंड सेकंड जो आपने बात की, जिसका मैं हिंदी में बोलता हूँ, वाणी सुंदर, वाणी, सब कुछ सुंदर, वाणी सुंदर, सब कुछ सुंदर, सच बोलने से वाणी में बल आता है, और मीठा बोलने से वाणी में यश आता है। आई रिपीट, वाणी सुंदर, सब कुछ सुंदर, सच बोलने से वाणी में बल आता है। That means you become strong like a tiger when you speak truth. And मीठा बोलने से वाणी में यश आता है। यश is exuberance. Yes is beautiful. Yes is... और मैं आपको और बात इसमें ऐड है, छोटी सी ऐड है, छोटी सी एडिशन है, वो ये है,
वो बहुत अच्छा है, मीठा बोलने से यश आता है। लेकिन क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है, एक घनघोर कलयुग चल रहा है, उसमें जब सच को आप मिठाई में डाल के देते हैं, वो सामने वाला लेता नहीं, तो थोड़ा सा कड़वा होना बहुत लाजमी है। उस मामले में मैं कड़वा हूँ अपनी बात को, पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जब मुझे लगता है कि सिचुएशन कुछ ऐसा है तो मैं अपनी कड़वाहट देता हूँ। उसको बाद में पता चलता है कि क्या है। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे तथ्य जुड़े हुए हैं, कुछ चीजें, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास? हाँ जी, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो पूरी सामने प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें वननेस है, जैसे संजू का और मेरा, संजय स्वराज का और मेरा, सुर ताल सुर ताल सुर ताल, ये विलेन बने हुए हैं और मैं इसका एक सेंट्रल पॉइंट था। और हमारा आपस में जो गिव एंड टेक है, डायरेक्टर ने कुछ लिखा ही ऐसे था। अच्छा, ये डायरेक्टर भी बड़ी कमाल चीज है। ये तीली ला के ना दूर खड़ी होके मासूम जा चेहरा लेके ना वो खड़ी रहती है कि अब ये तीली की आग कहाँ लगेगी। तीलियां ला के देखती रहती है दूर से, और मेरा और संजय का आपस में थोड़ा सा मुस्कुराती है, हाथ आगे करती है, मुस्कुराती है, हंसती है, क्योंकि इसे पता है इसने जो लिखा है उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। तो संजू के साथ में इसमें एक ऐसी सुर ताल मिली है। ये विलन था और ही विल टेल यू हमारा एक सीन था। क्या संजू, वो जरा सीन के बारे में बताइए जरा। एक सीन है जिसमें कि मैं ओपनिंग सीन है मेरा, कि मैं झूले में झूल रहा हूँ और कुछ गाना गा रहा हूँ और ये आते हैं अपनी प्लानिंग के साथ कुछ घर बेचने के चक्कर में। तो कहते हैं कि अरे सर, लोग तो मतलब एक से एक टटफूके पड़े हैं, अब कौन उसको खरीदेगा। तो विलेन थोड़ा सा चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम हमको क्या समझते हो श्यामलाल, हम कौन है, टट या पूंजी है? श्यामलाल कहता है अरे सर, आप कहाँ से टच हो गए, आप तो पूंजी है। और ये अच्छा, इंस्टेंट वो था, इम्प्रोवाइजेशन था। ये इम्प्रोवाइज, इसमें हमारे डायरेक्टर साहिबा भी बहुत जोर से हंसी। ये वुमन पावर दूर खड़ी हुई ऐसी मुस्कुरा रही है। हाँ, ये देखो यार, मैंने जो लिखा है इसका क्या क्या है, कमाल है यार, कमाल है इसलिए यार। मैं आ रहा हूँ। I think हाँ. Niti and Shalu, they are waiting. Anyone Yes. who is going ahead? Yes. So I have a question. Arun Bakshi sir. हाँ जी। बिकॉज आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी की एनर्जी नो डाउट मतलब कहीं भी मैचेबल नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ है कि मैं बख्शी सर के साथ काम कर रही हूँ, राइट। अरुण बख्शी जी, आपसे मिलने का मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनरल जीडी बख्शी जी के साथ भी मेरे को मिलने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ था। तो डीके बख्शी, अरुण बख्शी, जनरल बख्शी, मैं तीनों बख्शी से मिली हूँ और तीनों की ही एनर्जी, सुपर पावर एनर्जी का पावर हाउस, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब कमाल की है सर। मतलब तो मैं ये इसका सीक्रेट जानना चाहूंगी कि क्या है सर, ये बख्शीश में कुछ स्पेशल पावर ऊपर वाला देता है। मैं आपको बताता हूँ। एक बख्शी का नाम आप लेना भूल गई है, और वो बख्शी हम तीनों से बड़ा था। उसका नाम था आनंद बख्शी था। आनंद बख्शी साहब से मैं मिला हूं, और कमाल की बात है, एक फिल्म थी कर्मा, सुभाष घई साहब की फिल्म थी कर्मा। उसमें 4 लाइनें मेरे हिस्से में आई थी जो मैंने गाई थी। ओरिजिनली मुझको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बोला था, वो ऐसे ही बोले, अपने आप के साथ बात कर रहे थे, भाई ए बख्शी नहीं है तो ए बख्शी तो है। वो अपने आप से बात कर रहे थे कि ए बख्शी नहीं, मतलब आनंद बख्शी नहीं है तो आनंद बख्शी जी ने गाना था वो 4 लाइनें, जो कि अरुण बख्शी के हिस्से में आ गई। और उन्होंने मुझे सुना था, मैं स्कॉश खेलता था, स्कॉश टेनिस, और उसके बाद मैं वहां पे था। बख्शीश का ये एक तो ना, ये जो पावर है आप बोल रहे, ईमानदारी की पावर है। मुंह फट सामने दुश्मन बनाने में हम लोग माहिर हैं। आज अभी दोस्त हैं, 5 मिनट के बाद वो दुश्मन हो जाएंगे, फिर वो जो कलमुहे हैं, फिर दो दिन के बाद में सोचेंगे यार बंदा तो सही था।
गलती तो मेरी है, और फिर वो वापस आ जाते हैं। तो जो पावर ऑफ ट्रूथफुलनेस है ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें क्या है कि और किसी से स्वार्थ नहीं होता है। मतलब यहाँ पे भी आज की डेट में ये जितने बख्शी है, जीडी बख्शी साहब, तो मतलब वो एक बंदा पूरे पाकिस्तानी फौज के सामने खड़ा हो जाए और चिंगाड़ के बोल दे तो पाकिस्तानी फौज जो है भाग जाएगी, भाग जाएगी। वो हाथ जोड़ के बोलेंगे पीओ के, आप ले लो यार, छोड़ो, माफ कर दो, बख्शी साहब को भी ले जाओ और ये पीओ के भी अब ले ही जाओ यार। ये बख्शीश की एनर्जी है, उसमें सेल्फलेसनेस है, उसमें मेरा कोई सेल्फ नहीं। आज ये जो वुमेन पावर है, दिस इज फॉर वुमेन पावर। हम ये चाहते हैं वुमेन पावर को स्ट्रांग और करें। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट कि वुमेन पावर और स्ट्रांग हो। और इसमें इसका फायदा ये है, आपको एक माँ मिलती है। आपको जब विमेन को दुर्गा माँ का रूप है, सरस्वती माँ का रूप है, वो माँ मिलती है, बड़ी बहन मिलती है, और क्या चाहिए। आपका काम जो है वो अच्छा होता है, बरकत होती है, उसके अंदर से दुआ निकलती है और वो आपको दुआ देती है और आपका काम अच्छा हो जाता है। इस फिल्म के साथ भी यही है। जिस डायरेक्टर बेचारी 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 को पता नहीं है कि अगली यात्रा क्या होगी, लिख तो लिया, शूट भी कर लिया 21 दिन में, उसके बाद क्या होगा, वो पोस्ट प्रोडक्शन का काम जिसको आता नहीं है, वो उनके साथ बैठ बैठ के मतलब अब इनसे 4 फिल्में करवा लो। जब मैं डबिंग करने गया बख्शी साहब, तो मेरा स्टाइल है, मैं 2 घंटे में, एक दिन में 2 घंटे करता हूँ और 2 घंटे में बेस्ट देता हूँ। मैंने कहा मैं 4 दिन लूंगा, 2-2 घंटे रोज करूंगा, बट 2 घंटे में द बेस्ट डबिंग विल कम, बेस्ट डबिंग। मेरे 29 सीन्स थे एंड मैं देखा कि यार शी इज सो प्रोफेशनल। काम के मामले में ये पूरे सिंक में है। जब फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं तो सिंक है, आप सिंक में है, आप जो बोल रहे हैं, आर यू इन ए सिंक और नॉट, सिंक में टोटल। आई थिंक दिस फिल्म इज अ टीचर टू हर, आर डायरेक्टर। मतलब यहाँ पे पूरी मेहनत है बख्शी जी। और वो जो मस्त मलंग फकीर आदमी है, वो जो कि अभी प्लेन में हवा में जा रहा होगा, उतरेगा, उसने कभी नहीं पूछा हमारी डायरेक्टर से। ये हमारी डायरेक्टर ही बताएंगी कि उन्होंने कभी पूछा नहीं। प्लीज बताइए ना। क्या होता है जनरली नए मेकर के लिए, जब कोई प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर्स मिलते हैं, तो इवन प्रोडक्शन हाउसेस में उनके अपने बंदे छोड़ दिए जाते हैं इंटरफेयर करने के लिए। उनका काम ही लोगों के काम में इंटरफेयर करना होता है, कि उनको बोलने का, उनको टोकने का पैसा मिलता है। लेकिन आई एम सो लकी, टचवुड, कि अनूप जी ने ना तो कोई अपने नुमाइंदे भेजे, ना कोई लोग भेजे, ना कोई खबरी भेजे, ना जासूस भेजे। मुझे फुल फ्रीडम थी काम करने की, और बस किसी को कोई जवाब नहीं। अनूप जी सिर्फ एक दिन थे शूट पे, जब उनका सीन था, तब सिर्फ, वो भी मुंबई में, आगरा वो आए ही नहीं, आने वाले थे लेकिन उनका शूट कैंसिल करके हमने यहाँ स्केड्यूल कर दिया था। तो लकीली मुझे किसी ने कोई सवाल नहीं, आई वॉज रियली कैप्टन ऑफ द शिप एंड नो वन क्वेश्चन मी एनीथिंग, नथिंग। और बाकी रिपोर्ट तो रोज अनूप जी को मैं दे ही देती थी, रोज शाम को फोन पे बात करके कि सर आज ये हुआ, कल वो हुआ, ये कल ये करने वाले। बट उन्होंने ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आई एम सो लकी कि उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा। आज भी मैं फोन करके कोई चीज का मशवरा लेती हूँ, मुझे कहते हैं आपको मैंने कैप्टन ऑफ द शिप बनाया, मुझसे मत पूछिए, आप जो करेंगे सही करेंगे, एंड आई बिलीव यू कंप्लीटली। अब बताइए इतने अच्छे प्रोड्यूसर किसको मिलते हैं। सो डिवाइन हैज डेफिनेटली ब्लेस्ड मी विद हिम। I have और मैं one आपसे question, ma'am. बख्शी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा। लास्ट डे ऑफ द शूटिंग थी, बॉम्बे में थी, लास्ट के दो चार दिन यहाँ पे शूट किया गया था। लास्ट डे में इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक मारी है, एक सॉलिड मास्टर स्ट्रोक मारी है हमारी डायरेक्टर साहिबा ने। इनकी फिल्म कमेंट्री से शुरू होती है और उन्होंने उसका सूत्रधार जो मेरा रोल था, मेरी कमेंट्री से शुरू किया। उसी वक्त उन्होंने लिखा और उन्हें बोला कि ये कमेंट्री से आप शुरू कीजिए, और कमेंट्री पे खत्म किया। मतलब कि वो पूरा रोल जो है वो साक्षी है। इस फिल्म का पूरा साक्षी जो है ये श्यामलाल है, जो कि एस्टेट एजेंट है। और जब आप श्यामलाल का दरवाजा पार करके आगे जाते हो तो आपको एक बड़ा हसीन सा, एक स्मार्ट सा विलेन नजर आता है, जो आपके पड़ोस में बैठा हुआ है, दाढ़ी मूछ लगा के।
और उससे क्या है कि ऐसा हम लोगों ने बांट लिया आपस में, ऐसा बांट लिया, इट टर्न्ड आउट टू बी विद द न्यू कमर्स, इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड, वेरी गुड। हम आपके लिए एक क्वेश्चन मेरा, may I? Please. Yeah, so I would like to see that how do you see this movie as a learning or as a motivation for an ordinary housewife? What is the learning from your end for an ordinary housewife? See, this was my passion. मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव मेरा काम है, और मैं उन चंद लकी लोगों में से हूँ कि जिस चीज से वो प्यार करते हैं उसे वो प्रोफेशन बना सकते हैं। फिल्म मेकिंग इज माय लव, माय पैशन, एंड नाउ इट हैज बिकम लकीली माय प्रोफेशन। तो जो भी मैंने सीखा तो ऐसा लगा पिकनिक मनाते हुए सीखा, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सीखा। मुझे काम एज इन कभी काम महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर एक लम्हा, जब मैं एक पेन उठाकर उस चीज को लिखती हूँ ना, उस समय भी मैं उस चीज को एंजॉय करती हूँ कि ये मैं हर एक लम्हे को, इवन हर्डल्स को मैंने एंजॉय किया। मैंने कहा अच्छा इसका रोड मैप मैंने ऐसा बनाया, नहीं इसको थोड़ा घुमा के ऐसा बनाना पड़ेगा, लेकिन हम पहुंचते विनिंग पोस्ट पे तब भी थे, हर हाल में पहुंचते थे। बहुत सारी, एक छोटी नहीं, हर एक हर्डल को हमने पार किया है। नॉट इवन ड्यूरिंग, नॉट ओनली इन मेकिंग और शूटिंग, ऑल्सो ड्यूरिंग माई पोस्ट प्रोडक्शन। कोविड शुरू हो गया था, लॉकडाउन शुरू हो चुका था, होटल्स बंद थे, फूड आउटलेट्स बंद थे, मैं घर से खाना बनाकर ले जाती थी, डबिंग करवाती थी अपने। हम लोग शटर डाउन करके काम करते थे क्योंकि अलाउड नहीं था तब काम करना, बिल्कुल रेड्स हो जाती थी। हम शटर डाउन करके काम करते थे, बिल्कुल 1:30 बजे मुझे भूख लगती, मैं अपने घर से टिफिन जो ले जाती वो खाया, उसे भी एंजॉय किया कि गॉड थैंक यू, सब लोग घर में बैठे और मैं आज भी काम कर रही हूँ। तो दैट्स द पैशन। तो मुझे कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगी नीति जी। थैंक यू मैम। Okay. ओके, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है संजय जी आपके लिए। जी बोलिए। संजय जी, हमने काफी कुछ सुना रवि कला मैम से, बख्शी सर से, अरुण बख्शी सर से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस मूवी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट रहे होंगे जो आपको पसंद आए होंगे, बट कोई भी ऐसी बहुत ही स्पेशल, आपके दिल के करीब कोई ऐसी चीज रही हो जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको ये मूवी करनी चाहिए? कोई भी एक चीज क्लोज टू योर हार्ट। देखिए, एक चीज तो नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये मूवी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट मैंने ही सुना था और ये मेरी पसंद थी, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में था, क्योंकि मैं इस तरीके की फिल्मों का कदरदान हूँ। आप मेरा बैकग्राउंड अगर चेक करेंगी तो मैं मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ और उस तरीके से हूँ। हालांकि नो डाउट कि हम लोग अमिताभ बच्चन, देवानंद और विनोद खन्ना, इन सब की फिल्मों को देख के बड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक में वो जो पैरेलल सिनेमा था, श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, सुधीर मिश्रा और इन सारे मेकर्स का, वो हमारे दिमाग में प्ले करता था। और वो उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना था कि दैट वाज वी यूज्ड टू कंसीडर इट्स अ सेंसिबल सिनेमा। तो वो हम लोग दोनों तरीके से बड़े हुए हैं। हमें चाइनीज भी खाने को मिला, हमें इंडियन भी खाने को मिला है। तो वी आर वेरी लकी दैट जनरेशन कि जिसने हर चीज को देखा है और एक एवोल्यूशन फिल्म इंडस्ट्री का देखा है। तो जैसे घोसला का घोसला पिक्चर आई थी, तो मैं बहुत ही फेवरेट पिक्चर थी मेरी, और जब ये रवि जी ने ये मुझे सब्जेक्ट सुनाया तो मेरा पहला ये था कि इस फिल्म का, हालांकि स्टोरी अलग है, लेकिन इसका जो जॉनर है वो घोसला का घोसला है। तो बस मैं उछल पड़ा। मैंने तो सबसे पहले तो एक यही था कि मैं ऊपर वाले को इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये फिल्म बननी चाहिए। इतने प्यार से और इतने पैशन से इन्होंने सब्जेक्ट सुनाया, तो मे गॉड हर विश इज कंप्लीट। और हमें इतने प्यार से उस दिन बड़ा टेस्टी खाना भी खिलाया था। देखिए, फिल्म मेकिंग एक जो ये जो फिल्म मेकिंग होती है ना, इट्स लाइक कुकिंग, इट्स अ केमिस्ट्री, कि जिसमें आपको बहुत सारी चीजों के इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए कि कब क्या डालना है, कब क्या नहीं डालना है। तो जिस शख्स ने मुझे इतना बढ़िया बेहतरीन खाना खिलाया, मेरे दिल से उस दिन ये दुआ निकली। मैंने कहा यार, इतना जो आदमी पैशन कर सकता है तो मेरे लिए और ये एक सीखने का भी एक बहुत बड़ी पॉइंट था कि एक लेडी खड़े होकर किचन में खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, और जिसको कि बाहर का अभी कोई पता नहीं कि फिल्म का भविष्य क्या होगा, लेकिन वो अपने पैशन और अपने कन्विक्शन
और अपने भगवान के भरोसे और ओम नमः शिवाय का नाम लेके, और हम भी ओम नमः शिवाय वाले ही हैं, तो हम भी बोले, जब हमें भोलेनाथ के भक्त मिल जाते हैं तो हम उनके लिए बहुत सारी उनके लिए भी दुआएं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भोलेनाथ ने ये सुन लिया और इसमें बहुत ही लाइक माइंडेड लोग मिले, और मेरे लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि इस फिल्म में याद करने के लिए मैं अरुण बख्शी जैसे इंसान से मिला। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, मैंने अरुण बख्शी जी के साथ आज से 25 साल पहले मैं तब बंबई आया था, एक फिल्म थी डायल 100, वो यूट्यूब पे मौजूद है, तो देखिएगा। हालांकि अरुण बख्शी जी उसमें टुवर्ड्स दी एंड आते हैं, वो एक एसपी वगैरह बने हुए थे, लेकिन उस दिन भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी छत पे, हॉराइजन होटल के छत पे, कि मुझे आज भी हंसी आती है वो सीन याद करके। ये अरुण जी को याद नहीं है, वो मैंने एक बार जिक्र किया था। तो याद है, कुछ लाइंस याद है उस सीन की? नहीं, वो उसमें ये था कि और एक किसी के मरने का सीन चल रहा है, और उसमें एक लड़की थी, वो अपने मेकअप की चिंता कर रही है। मेकअप तो अरुण जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो भी चिल्लाने लगे, मेकअप मेकअप मेकअप। अब उस लड़की ने कॉर्नर ऑफ द आइज से देखा और मैंने भी देखा, हम दोनों बहुत जोर से हंसे, क्योंकि नेचुरली अरुण जी बहुत सीनियर थे, तो हमारी गुफ्तगू नहीं हो पाई उस समय, लेकिन हम बहुत जोर से हंसे। और मैं जब कभी अरुण जी से देखता था दूर से, मुझे वही सीन याद आता था, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इनकी बातें। तो जब हम होटल से दोनों निकले, तो अरुण जी ने फिर वही गाड़ी में बैठने के बाद, ओ यार तू आज मुझे पान खिलाएगा, चल गाड़ी घुमा यहाँ से। पार्टी बहुत होती है अरुण जी के साथ, यस। तो बस ये सारी चीजें हैं। फिर वहां पे मैं पहुंचा, फिर वो एक कैमरामैन जो बहुत कमाल का मिला मुझे, जिसका नाम योगेश कोहली है, उसको देख के भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने डायरेक्टर के ऊपर तो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे ये न्यूज मिल गई थी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हर्ष गुप्ता जो इनके हस्बैंड है, वो मेरा बड़ा, आई अंडरस्टैंड हिज पैशन, बहुत ही पैशनेट आदमी है वो कभी भी आदमी बैठने वाला नहीं है। वो फॉल के अवार्ड करेगा, वो अमेरिका जाएगा, वो यहाँ करेगा, हॉलीवुड की पिक्चर बनाएगा, इसमें करेगा, बंगलो बनाता। ही इज ए फैंटास्टिक आर्किटेक्ट। अनूप जलोटा जी को ज्वाइन कराइए, अनूप जलोटा जी को ज्वाइन कराइए फटाफट। अनूप जी आगे जलोटा जी बख्शी साहब। तो फिर शानू, और फिर इसमें हमारे अनूप जलोटा जी, जो कि मतलब हम तो बड़े, मेरी फैमिली जो है बड़ी, उनकी बहुत ही मद्दा रही है और बहुत चाहने वाले रहे हैं, और इसीलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे रवि जी ने ये बताया था कि उनका कहीं से कोई इंटरफेरेंस नहीं था। उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी यूनिट को दिया, जिसको जितने पैसे चाहिए थे टाइम पे उसके पैसे ट्रांसफर हो जाते थे, अच्छा खाना, अच्छा मतलब बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। फिर जिस लेडी ने मुझे कपड़े पहनाए, शी इज ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका, शी इज एनआरआई, शुभ मल्होत्रा, उसने मुझे जो कपड़े पहनाए, और मेरा कोई नाप नहीं लिया गया था जैसा कि अरुण जी ने बताया, बट बिल्कुल फिट कपड़े थे, और उन कपड़ों को पहन के यू बिलीव मी मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ। तो मैंने बोला थैंक गॉड, थैंक भोलेनाथ, ईच एंड एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। फिर वो लड़का अभिषेक, रवि किशन की बेटी, हमारी सबसे प्यारी दोस्त श्रुति उल्फत जो कि उसमें थी, और मेरा छोटा भाई तुषार, वो यादव का कैरेक्टर, वो कबाड़ी का कैरेक्टर, ये लोग बहुत ही प्यारे लोग थे। और इसीलिए शालू, इस फिल्म में मैं कहता हूँ एक नहीं, हर मोमेंट ऐसा है जिसको मैं याद करता हूँ, और ऊपर वाला करे ऐसे मोमेंट्स सारे एक्टर्स की जिंदगी में आए। और मेरे लिए ये यादगार रोल है, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं हूँ जैसा मैंने ये रोल किया है। मैं आम जिंदगी में बहुत ही मुझे लोग बोलते हैं कि बहुत रिजर्व किस्म के हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव रोल करते हैं, और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक चैलेंज भी था। थैंक्स टू रवि जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक इतना पॉजिटिव रोल करने वाला जिसकी इमेज है वो इस तरीके का रोल भी कर सकता है। और मुझे तमाम अपने एनएसडी के प्रोफेसर्स का जब फोन आता है कि संजय, वी कैन नेवर इमेजिन इट फ्रॉम यू, व्हाट एनर्जी यू आर पुटिंग इन योर सॉन्ग्स एंड ऑल, तो ये बहुत खुशी होती है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबडी, एंड आप जैसे लोगों का जो कि हमको सराहते हैं, और हम आपको सराखों पे बिठाते हैं, इसीलिए कि आप जैसे लोग नहीं होंगे तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होगा। आप लोग चाहते हैं, आप लोग अपने शो में बुलाते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ
कि हम सभी लोग इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करें और हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है ये और अच्छे तरीके से काम करे और हम अपने देश का नाम ऊपर करें, हम अपने देश के झंडे को कभी नीचे ना होने दें और कभी उस देश के बारे में ऐसी बातें ना करें जिससे सारी दुनिया को ये लगे कि ये लोग पर्दे पे कुछ और हैं और असल जिंदगी में कुछ और है। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए बिल्कुल एकदम मिरर की तरीके से, जो है वो हम दिखें, हम जिसको हेल्प कर सकते हैं उसको करें, जिसको नहीं कर सकते उसको कोई झूठा प्रॉमिस ना करें, उससे कोई वादा ना करें। बस मैं सभी के लिए यही दुआ करता हूँ और हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ। Very good. Happy landing, sir. Happy landing, sir. Thank you. I am delighted. I am delighted to present, ladies and gentlemen, the Bhajan Samrat of Bharat Desh, one and only Anup Jalota ji. Big round of applause for the Bhajan Samrat and unchallengeable Bhajan Samrat of the world, you can say. He could never be challenged. Nobody could take his #1 position of Bhajan Samrat. And that is the power. And I met him in 2008 in Bangkok, and I'm delighted. I am really delighted today when I see him, and he's still in the plane. He's still in the plane and he has joined. अनूप जलोटा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ज्वाइन किया। आई थिंक हमारे पास निति अरोरा है, she wants to ask you a quick question. Good evening, sir. Jai Shri Krishna. Good evening, Jai Shri Krishna. क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। It is my pleasure, indeed pleasure, that I can see you and I'm talking to you. I cannot believe this, sir. Totally my pleasure. बस अभी फ्लाइट से नीचे उतर रहा हूँ, दिल्ली लैंड किया हूँ और आपसे जुड़ गया। Are you okay? Can I ask you a question, sir? अरे आप 100 सवाल करिए, एक सवाल में क्या रखना है? Thank you so much. Thank you so much. I'm thankful to my Kanha ji. Though I'm trying to become a devotee of Kanha ji. Still, I am practicing to do that. So I have heard of many big bhajans of yours. So can I ask you to sing a song? I'm sure it is not possible for you to sing a song or bhajan for us. So in case you are okay, I request you to do that. Sure, sir. Sure, sir. कौन सा वाला? मीरा हो गई मगन। Yes, yes, yes. ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि ये बहुत मजेदार फिल्म बनी है। होता क्या है कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं, पॉजिटिव वाइब से हो, तो इस सुंदर काम को होना ही होना है और ये सच में हो गया है। और अभी तो इसका म्यूजिक जो हम लोगों ने रिलीज किया है, इस म्यूजिक का हंगामा हो रहा है। ऐसे 3 गाने ऐसे लोग पसंद कर रहे हैं और देखिएगा आगे 2 सितंबर को हम रिलीज करेंगे इस फिल्म को। इसका हंगामा देखिए, हंगामा होगा, इसका हंगामा होगा। बिल्कुल हंगामा। इब्तिदाई इश्क है सर। सर आपका जो सामान है, अनूप जी आपका सामान है पट्टी नंबर 4 पे आ रहा है, ये समाचार अभी। देखिए आप सारे डायलॉग सुन रहे हैं। बेल्ट नंबर 4 पे आपका सामान आ रहा है। मतलब ये इंसान जो है, ये दीवाना पगला आदमी ऊपर बैठ के 2 भजन की कंपोजिशन कर ली होगी और वो पूरी बन गया होगा। अभी ये फोन करेंगे यहाँ पे आके अपने अरेंजर को कि भैया धुन बन गई है, अब इसका म्यूजिक तैयार करते हैं। हाय 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 हाय, क्या अदा है सर, क्या बात है बॉसी। अभी बस में है, प्लेन से उतर के बस में। कोच में हूँ, मैं किसी के बस में नहीं किसी के बस में नहीं हो। जलोटा जी, वो तो बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट दिया आपने, मैं किसी के बस में नहीं हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट।
मैं जलोटा जी ये बताइए, आप दिल्ली कितने दिन रुकेंगे? बस आज हूँ, कल मैं अच्छा, कैलकाटा जाऊंगा, यहाँ से कुछ एक कॉन्सर्ट है कैलकाटा में, तो कल मॉर्निंग में वहाँ चला जाऊंगा। अच्छा, फिर बॉम्बे मिलने आना पड़ेगा। आपका जो रिलीज है, एक आपसे बोलना चाहते हैं कि हमने आपके पीछे बड़ी बातें की इस मूवी की, और एक बात सामने आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल तो आपकी बताइए। जितनी टीम यहाँ बैठी है, इन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर साहब ने पूरी एम्पावरमेंट दे दी, एक दिन भी नहीं आए आगरा। और ये राइटर और डायरेक्टर जो आपकी है वीमेन पावर की, ये वीमेन पावर रवि कला कहती एक बार भी नहीं, शाम को मैं रिपोर्ट देती थी और जलोटा जी ने पूरा एम्पावर किया मेरे को। और अभी हमारे मैंने इसलिए मैं आगरा इसलिए नहीं गया कि जाके मैं इलाज करा आ चुका था, तो मैं दोबारा क्या जरूर जाना। वाह, क्या बात है। वहां तो पागल खाने में होके आ चुका हूँ, दोबारा क्या भेजे, अभी सब लोग जाएंगे। अरुण बख्शी साहब, सर मैंने आपसे, जलोटा जी तो एक और कदम आगे निकल गए। नहीं सर, मैंने आपसे कहा था ये सारा परिवार चलियांदा है, पगलियांदा है, दीवानियांदा है। अगर सम्राट है तो बड़ा चला होएगा, ये बड़ा पगला है, क्योंकि ये सम्राट है। असी छोटे इन्हां दी प्रजा मां, असी इन्हां दी प्रजा मां। हाय हाय क्या बात है। नहीं सर, इट वाज अ प्लेजर डूइंग दिस फिल्म। हाय हाय क्या बात है, इट वाज अ प्लेजर डूइंग दिस फिल्म। और क्या होता है सर, अनूप जी जैसी शख्सियत अगर इसको प्रोड्यूस कर रही है तो अंदर से एहसास होता है कि नहीं, काम में बहुत ईमानदारी होनी चाहिए, काम टाइम पे काम पे जाइए और अच्छा काम कीजिए। क्योंकि जब सिंगर अलाप ले ले के पैसे कमाता है तो उसका एक एक पैसा बहुत ईमानदारी का होता है सर। बख्शी साहब, एक एक पैसा बड़ा ईमानदारी का होता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। और इस पैसे में बरकत होती है बख्शी साहब। जलोटा जी उतर रहे, तब तक मैं अरुण बख्शी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अरुण जी आप देशभक्ति के बहुत गाने गाते हैं, एक पावरफुल सॉन्ग जो है तब तक हमारे लिए गाइए, जब तक अनूप जलोटा जी आगे आएंगे तो फिर बात करेंगे। आपका कौन सा, अभी जो कोविड डेज में भी आपने बड़े अच्छे गाने गाए, एक बड़ा एनर्जेटिक गाना आपने गाया था जो मैंने भी हिट किया था ग्लोबल वाले, कोई भी लेटेस्ट गाना तब तक सर ऐसा है, अभी 15 अगस्त को एक सिर्फ वोकल जो है वो मैंने रिलीज किया है, वोकल है। उसका जो वीडियो है वो रिलीज होगा 26 जनवरी को। क्योंकि वो जो गाना है इट इज ऑन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जी जी। वो क्या है कि प्रेजेंट रिजीम जो है उनके मैनिफेस्टो में है कि वी हैव टू गेट आवर पीओके बैक। वो हमारा ताज है, ताज, वो हिंदुस्तान का ताज है। वी हैव टू गेट दैट पीओके बैक। हमारे अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होके बोल दिया था कि जान दे देंगे और ये लेके रहेंगे। और पीओके एंड एक्साइचिन जो चाइना के पास है वो हमारा है, हम लेना है, हमको लेना है। उसके ऊपर 2 लाइनें हैं अनूप जी, बिगिनिंग का है, पीओके के ऊपर है कि पीओके इत्थे रख, पीओके इत्थे रख, साडा पीओके, भारत का है पीओके। उसको एनर्जेटिकली कुछ ऐसा किया है, मैं आपको ओपनिंग का ही सुनाता हूं। पीओके इत्थे रख, पीओके इत्थे रख, साडा पीओके, भारत का है पीओके, पीओके इत्थे रख, इत्थे रख तू पीओके। हैशटैग आतंकिस्तान, हैशटैग कशोलिस्तान, हैशटैग ओ झूठिस्तान। लहजे क्या है, लहजे का करिश्मा है या आवाज का जादू, वो बात भी कह जाएं और मेरा दिल भी दुखे ना। विदाउट नेमिंग एनी, without any taking any country, and that country knows it, that country knows it कि POK is ours, India's, हम लेके रहेंगे, क्यों नहीं।
हो सकता है कि कल अनूप जी भी एक गाना बनाए, एंड व्हाई नॉट, इंस्पायरिंग अनूप जी, एंड ही इज कमिंग आउट विद अ फैंटास्टिक सॉन्ग, व्हाई नॉट मैन, इट्स अ फैंटास्टिक सर। और एक मनोज कुमार जी से गाना लिखवाया था, उसका था बहुत, मनोज, वी टुक राउंड अबाउट 9 months, मनोज कुमार जी रोट इन 9 months, वो था गिव मी 2 minutes, तब तक अनूप जी को कुछ ना कुछ एक अदाब। हम एक्चुअली ऊपर गए थे, वहाँ पर गेट से उन्होंने बस से भेजा आपको। हम ऊपर गए थे। हाय हाय अनूप जी, इंटरव्यू भी देना है। हाँ जी, ये अभी जो गणतंत्र दिवस गया है जी, इसमें मैं एक गाना सबको सुना रहा था जी, इरशाद। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। तो यही तो गड़बड़ हो गया, इसको सोने की चिड़िया कह दिया, सोने की चिड़िया कह दिया तो अंग्रेजों ने भी लूट लिया, मुगलों ने भी लूट लिया, क्योंकि चिड़िया थी ना, चिड़िया को तो कोई भी लूट लेगा। लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर, अब लूट के अब लूट के दिखाओ बेटा। और शेर ने भी दांत निकाले हुए सर। अच्छा, बाय द वे, अनूप जलोटा जी, अरुण जी एंड रवि कला जी एंड संजय जी, कल शाम 7:30 बजे से लेकर कल शाम 7:30 बजे तक हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, सोने की चिड़िया को जगाओ। तो मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा कल शाम को, क्लोजिंग है 7:30 बजे उसकी। ये 48 घंटा नॉन स्टॉप प्रोग्राम हमारा चल रहा है जूम पे, फेसबुक पे, और उसको चूंकि ये डेट फिक्स था तो हम उसको अवॉइड नहीं कर पाए। सोने की चिड़िया जगाओ, और वो 48 घंटे का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। इसका प्लान है अगले साल 1 लाख लोग इकट्ठे मिलके एक बड़े स्टेडियम में करेंगे, और मैं आपको उसमें जरूरी इनविटेशन दूंगा। दूसरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मैं ये गाना खुद गाता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ट्रेनिंग में। मैं आपको अपना यूट्यूब भेजूंगा, और आप देखिए कैसे मैं लोगों को, 1000 लोगों को मैं ये गाना गाता हूँ। मैं तो अनूप जलोटा जी आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, बट you will see the power and energy in that song, which I will send you all of you on the WhatsApp. In the meanwhile, Shalu, you wanted to say something. अनूप जलोटा जी, मेरा नमस्कार आपको। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर शो में देखकर सबके साथ में। तो माहौल बड़ा म्यूजिकल सा हो गया। अरुण बख्शी जी ने कुछ लाइनें सुनाई, एंड अनूप जलोटा सर आपने भी। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ आप लोगों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। तो मेरी बस रिक्वेस्ट यही है कि कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, राइट। बट हाँ, मैंने बहुत दिल से कुछ पंक्तियां लिखी हैं आप लोगों के लिए, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी जी। ग्लोबल टैलेंट कंपनी को शत-शत बधाई है। ग्लोबल टैलेंट कंपनी को शत-शत बधाई है। बधाई है। आज हमारे विमेन पावर पर टोकन द ट्रेजर की स्टारकास्ट आई है। थैंक यू, थैंक यू। आभारी हैं हम बख्शी जी के, आभारी हैं हम बख्शी जी के, अरुण जी के, बख्शी जी के। वाह वाह वाह। आभारी हैं हम बख्शी जी के, जिनकी मेहनत ये रंग लाई है। आज हमारे विमेन पावर पर टोकन द ट्रेजर की स्टारकास्ट आई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, बहुत अच्छा। सादर नमन है, सादर नमन है नारी शक्ति को, सादर नमन है नारी शक्ति को, अपनी रवि कला जी को। सादर नमन है नारी शक्ति को, अपनी रवि कला जी को, जिन्होंने अपनी कलम उठाई है। आज हमारे विमेन पावर पर टोकन द ट्रेजर की स्टारकास्ट आई है। So nice of you, so nice of you, so nice of you.
So nice. So nice. सादर नमन है संजय जी को, जी सादर नमन है संजय जी को, S for SS संजय जी को, सादर नमन है संजय जी को, S for SS संजय जी को, जो निभाते भूमिका विलेन की ज्यादा, जो निभाते भूमिका विलेन की ज्यादा, लेकिन सूरत हीरो सी पाई है। आज हमारे विमेन पावर पर टोकन दी ट्रेजर की स्टारकास्ट आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल। अनूप जी, नहीं, नहीं। ये आपके लिए। क्या बोलूं सम्मान में उनके, क्या बोलूं सम्मान में उनके, जो स्वयं संगीत सम्राट हैं। क्या बोलूं सम्मान में उनके, जो स्वयं संगीत सम्राट हैं। वाणी जिनकी अमृत घोले, वाणी जिनकी अमृत घोले, सुनने की हर बारी आस है। धन्य हो गए भाग हमारे, धन्य हो गए भाग हमारे, जो आज अनूप जी की संगत मिल पाई है, जो आज अनूप जी की संगत मिल पाई है। आज हमारे वुमेन पावर पर टोकन दी ट्रेजर की स्टारकास्ट आई है। बहुत Beautiful. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you Very very good. much. Very Thank good. you. That's a good surprise. थैंक यू, थैंक यू। Thank मजा आ you. गया, Thanks मजा a आ गया। lot. क्या बात है। अब ये गाड़ी में बैठेंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे जी तो शायद हमारे को वो मीरा हो गई मगन। हाँ, ऐसी यस, लागे बिल्कुल। लगन। ये अभी मैं अभी ज्वाइन होता हूँ आपके साथ फिर दोबारा हाँ गाड़ी जी। में बैठ। हाँ, गाड़ी जी में जी बैठ जी गाड़ी में बैठ के इन द मीनवाइल, हाँ अभी दोबारा ज्वाइन करें। इन द मीनवाइल अरुण जी, अरुण हाँ जी, जी। हाँ। so happy. हाँ अरुण जी के लिए क्वेश्चन। हाँ हाँ बोले जी। बोले। हाँ जी, अरुण हाँ जी, सर कहिए। मिट्टी दे बाबिया। ओके ओके ओके। मिट्टी दा बावा, बोल मिट्टी दिया बाबिया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया। मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरियां, गल्लां कर कर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आजा। वे वाह बोल मिट्टी दिया, वे बोल मिट्टी दिया बाबे आवे तेरे, ओ तेरे दुखां ने मार मुका लिया। ओए मेरा सोना माही आजा ओए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, ओए बूहे अगे लावा बेरियां, ओए गल्ला कर कर होण तेरियां मेरियां, ओए मैनू शक्ल विखा जा आजा होए आजा होए आजा होए। थैंक यू। Thank you वाह so much. ये क्या एनर्जी, क्या माय गॉड। अरे संजय जी, रवि कला जी जी, सर। I don't know what to say, but the way this program got designed, I don't know. The way the things are moving, it's Yes. an unexpected surprise to me. I am loving it. And you know कितना टाइम आ गया? अरे माय जी। गॉड, 7 बज गए, 1.5 घंटा हो गया हमें बैठे हुए। जी We should wait for अनूप जी, वो ज्वाइन कर रहे हैं गाड़ी से, उनके गाना सुन के I think we need to close, because this program after this will be on YouTube around the world with different places. And मेरी जो Correct. NRI community है, बड़ी पागल community है around the world. हिंदुस्तानी तो है ही है, हिंदुस्तान जो मेरी OCI है NRI, वो power of the world है। आपको पता है बॉलीवुड का तो हिंदुस्तान में तो जय जयकार है ही, बट जितना ज्यादा जय जयकार बाहर वाले देशों में है, being an NRI, I tell you, it's madness. You go mad. डॉक्टर Literally. वकील साहब,
वकील साहब, मैं आपको एक बात बोलूं, ये क्यों पूरी दुनिया में जो बॉलीवुड है क्यों इतना मशहूर है, क्यों मशहूर है? रीजन क्या है? इट इज बेसिकली ए फेरी लैंड, इट्स ए फेरी लैंड। लेकिन लगता है फेरी लैंड है, जो आपके अंदर मन की आकांक्षाएं हैं वो आप सामने देखते हो, आप सामने देखते हो कि वो पूरी हो रही हैं, गाने चल रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड, यही है बॉलीवुड। अगर वैसे बॉलीवुड कहने से ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड की नकल कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री भी क्यों कहीं, ये इंडस्ट्री तो वो होती है जिससे बैंक लोन मिलते हैं, ये तो फकीरों की है। यहाँ कोई किसी को लोन नहीं देता है, नंबर 1। यहाँ हमारा कलाकारों का कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, हमको कल का पता नहीं है पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी एक मस्ती है, हाय हाय, वो एक मस्ती है, एक मोहब्बत है, एक इश्क है कि नहीं यार कुछ ऐसा काम कर जाए, दम ले ले घड़ी भर, पानी पे लिखी लिखाई, कुछ पानी पे लिखी लिखाई हो, कुछ बात समझ में आए, जाने के बाद में वो चीजें जो हैं लोगों को मार्गदर्शन करें। जैसे आपने कहा था, बंदा ऊपर चढ़ता है और वो जो नीचे आते हैं उनको राम राम करता है, उनको कुछ पानी पिलाता है, ख्याल करना भाई अपना, ये दान है। अगर आप किसी को एक अच्छी सी नजर, एक मोहब्बत, एक इश्क टूटे हुए को जोड़ते हैं तो समझ लीजिए ये महादान है। और ये बॉलीवुड की खूबसूरती यही है, ये टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। आज हल्की सी तकलीफ में हैं हम लोग, आजकल हल्की सी तकलीफ में हैं हम लोग, लेकिन द डेज पूरा एकदम से निकल जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे। द डे इज नॉट फार। अभी ऐसी फिल्में, ये हमारी फिल्म जो है इसकी खूबसूरती भी यही। म्यूट हो गया। हाँ, म्यूट हो गए अरुण जी। अरुण जी म्यूट हो गए। जब वो म्यूट है तो मैं तब तक क्या हुआ है ना, या हाँ हमने सोचा कि 1 घंटे का हो, लेकिन ये बढ़ गया है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये आपने टाइमर लगा दिया क्या? जी, आपने टाइमर लगा दिया क्विट करने का? नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को टाइम दिया था। अच्छा, हेलो, मैंने टाइम दिया था कि ये 6:30 बजे का होगा। हाँ जी। हेलो, 1 घंटे का ही था वो, उनकी वजह से हम डिले हो गए। अभी भी आप क्या कह रहे हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता था रवि कला जी से और संजय जी से। जी रवि कला जी, अब तो आप स्टारडम पे आ गए, which we call stardom. इस स्टारडम में आपको क्या लग रहा है? Where do you stand today? Get into that aspect of you being at stardom of Bollywood. आपको लग रहा है वो आपको तंग कर रहा है? आपको लग रहा है वो आपको प्यार दे रहा है? आपको लग रहा है कि वो आपको और खुशी दे रहा है? आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रहा है? Because I keep asking all stars. Even I was asking Pallavi Joshi and Vivek Agnihotri. I'm very close to them. Kashmir Files में उनका पार्टनर रहा हूँ मैं उस मूवी को बनाने में। तो what is happening on your stardom today? ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। मैं ये फील करती हूँ कि स्टारडम आपके बाहर भी होता है। अगर कोई चीज आपको खुशियां देती है, यू नो द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इनसाइड ऑफ योर गैलेक्सी। हर वक्त जब आपका मन रोशन रहता है, सितारे चमक रहे होते हैं मन के अंदर, एक्चुअली वो स्टारडम है। वो आपके साथ आता है और आपके साथ जाता है। अगर आप डिपेंड करेंगे खुशियों के लिए या स्टारडम के लिए या किसी और पर डिपेंड करेंगे तो आप हमेशा मायूस होंगे। अगर आप अपने अंदर खुशियां बटोर के चलेंगे, अपने मन के अंदर के स्टार्स को हमेशा ट्विंकल होने देंगे, तो फॉरएवर रहेगा। तो आई फील दैट। क्या जवाब है आपने? मैं एक सीधा मिसाल हूँ। कोविड हो, मुसीबत हो, तंग हो, कुछ हो, मेरी कभी स्माइल नहीं जाती है, मेरी कभी एनर्जी नहीं जाती है, कभी कोविड नहीं, मेरी भी नहीं। वो रोमांसिक विद डेस्टिनी है। I am always romancing with my destiny. वही सर, जिंदा दिली जो है ना, वही लाइफ का एसेंस है वकील साहब। एक्चुअली मैं हमेशा और वो जो रवि जी ने जो कहा ना
बल्कि मुझे तो कहते हैं, मुझे लगता है कि और लोगों को इस बात से किसी भी एक्टर को या डायरेक्टर को या किसी भी उसको इंस्पायर होना चाहिए, इस बात से कि जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि इसमें भी बड़ी थिन लाइन होती है कि कुछ लोग ये जो स्टारडम है उससे या तो इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग जो है उसको लेके भटक जाते हैं या कुछ होता है। तो ये इसको संभालने के लिए भी बड़ी एक मैच्योरिटी की जरूरत है, और जो लोग बहुत ही संघर्ष करके ऊपर आते हैं वो इस मैच्योरिटी को जानते हैं, इस चीज को समझते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये आसानी से थाली में परोस के मिल जाता है, बख्शी साहब, आपकी जिंदगी में ऐसे आसपास की उसमें ही हजारों उदाहरण होंगे कि जिन लोगों को थाली में परोस के ये सब चीजें मिली थी, उन लोगों ने थाली ऐसे उछाल दी। उनको इस बात का ये अंदाजा नहीं था कि ये खाना, उनको ये था कि एक थाली जाएगी तो हमारे पास 10 थाली और आ जाएंगी। लेकिन सर हमारे पास एक थाली बड़ी मुश्किल से आती है। बहुत 30 साल बाद एक थाली हमको मिली फिल्म में। मुझे इतना बड़ा रोल मिला काम करने के लिए, अगर मैं उसी थाली को ऐसे साइड में कर दूं या इग्नोर कर दूं या कुछ कर दूं तो मेरे पास वो थाली कभी नहीं आएगी। तो मुझे उससे इंस्पायर होना है इन सब चीजों से। आप जो प्रेस कर रहे हैं या शालू जो प्रेस करी या नीति ने जो पूछा, इन सब बातों से मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे और अच्छा कैसे मैं काम करूं ताकि आप लोग दोबारा मुझे अपने शो में बुलाएं। वेरी ब्यूटीफुल। अरुण जी अब क्या करें, रुके कि शो को क्लोज किया जाए? आई थिंक वी शुड, मुझे ऐसा लगता है वी शुड क्लोज इट। वहां पे कंडीशन क्या होगी, वहां पे दिल्ली है, दिल्ली तो बड़ी स्लगिश प्लेस है, वहां पे ड्राइवर आएगा, बेचारे कहाँ पे खड़े हैं, उनकी सुर इस तरफ भी लगी है। और मैं तो ये कहूंगा कि वी शुड फिनिश इट ऑफ, क्योंकि काफी मेरे तो बहुत सारे फोन आ रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बहुत हैं। हाँ जी, हाँ जी। But okay, let me close. It was a pleasure. शालू जी, बख्शी जी, नीति जी, अरुण जी, और सॉरी मैम मैं आपका नाम फिर से भूल गई। अनुश्री जी और साथ में जो लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़े और जिस वजह से हम यहाँ पर जुड़े, उस फिल्म के लिए मेरे प्रोड्यूसर, मेरी फैमिली, माय हस्बैंड, माय फ्रेंड्स और ऑल माय आर्टिस्ट, अरुण जी और संजय जी स्पेशली, thank you so much and I love you all. Ladies and gentlemen around the world, this is going to be the power of world. This movie, do not miss to watch this movie. This song is already viral. You just see Twitter, you just see Facebook. Yeah, is already viral, and this is premiere on 1st of September and 2nd of September is going to be released. घर से कहाँ तक? Treasure Tag, the movie, the power movie, wherein Arun Bakshi, wherein Sanjay, wherein Jasleen are acting, all the writing of Ravi Khanna, the women power who has written, and the director, and of course, the producer, Samrat, Bhajan Samrat himself. I wish to thank each one of you. Yeah. बाकी साहब बस आपसे 1-2 सेकंड की लिबर्टी ये कि आई वांट टू मेंशन द जसलीन माथुरु's नेम बिकॉज जसलीन इज अ वेरी नोन डांसर एंड सिंगर एंड एवरीथिंग। तो जब वो पहली बार जब मेरी जसलीन से मुलाकात हुई थी, शी वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, अ वेरी स्वीट गर्ल एंड अ वंडरफुल पर्सन, और उनकी मदर वगैरह सब वहां पे थी। तो माय स्पेशल मेंशन एज एन एक्टर फॉर जसलीन। तो जसलीन वी लव यू। और अनुश्री जी भी, जिनका कि नाम मुझसे छूट गया है शो में, शी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस शो। यस। And we have to mention Shruti Ulfat also. She was अनूप जी ज्वाइन कर गए, अनूप जी ज्वाइन कर गए। अनूप जी को गाना सुनो भाई, नीति गाना का गाना आ रहे हैं अनूप जी। 2 मिनट चलिए सर, इजाजत दीजिए सर। 2 मिनट रुके जी। आगे अरे आगे अनूप जी, अरे वाह, हाजिर अनूप जी, अरे आपने तो दिल जीत दिया हमारा। मैं तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूँ। वो गाना है ना, दिल क्या है चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए।
I am on a romancing with destiny today, and destiny वाह। is powerful. अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं कि मेरा कल प्रोग्राम था और इंदौर में प्रोग्राम था। इंदौर से अभी लैंड हुआ हूँ दिल्ली। तो इंदौर में बहुत अच्छी ऑडियंस थी, बहुत लोग बैठे सुन रहे थे। तो फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी हुई थी और उनके गोदी में एक बच्चा था, वो रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा, बहन जी इसको चुप करा दीजिए। तो वो बोली, ये भी यही कह रहा है। अब बताइए, ऐसा ऐसा सुनना पड़ता है। सर हम प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन आपके इसका मीरा हो गई मगन, क्योंकि हमारा जो ये गाना है ना, ये भजन जो है ना, दिस इज द पावर ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड नो अबाउट दिस पावर ऑफ वन एंड ओनली अनूप जलोटा, द सम्राट, भजन सम्राट। हमें वो सुनना ये गाना मैं आपको सुना। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खजाना मिल गया हमें, शुक्रिया। मिल गया। आज भी हर आदमी मगन हो जाता है अनूप जी ये गाना आपका सुन के। वाकई में बहुत शुक्रिया, दिस इज सो पावरफुल, दिस इज सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू करता हूँ मैं सबका। अनूप जलोटा जी, आप देखिए किस तरह से जहाज में बैठ के, उसके बाद कोच में, बस में, किसी के बस में नहीं है आप, कोच में थे आप। मैं किसी कोई, बल्कि जहाज भी मुझे उड़ाना पड़ा था 30 समय टाइम से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत जलोटा जी। एंड मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, ये मूवी इतनी हिट हो जाए देश में नहीं पूरे विदेश में, और हम प्राउडली कहें कि हमारे शो पे पूरा क्रू आया था। एंड यस, आई वुड से गो ग्रो with grace, grace and gratitude. Again, go Grow, glow, grow grace and gratitude. थैंक यू सर। Thank you, thank you, thank you, so thank you. everyone. all the best. Thank you, so much. thanks sir. Thank you so much, everyone. Thank मुंबई you. आएंगे मिलेंगे आपसे, मुंबई आएंगे मिलेंगे आपसे। बिल्कुल मिलेंगे, थैंक यू सो मच, सो नाइस सर। बिल्कुल मिलेंगे, थैंक यू सर। इंशाल्लाह। Yes, inshallah. Bye. Thank you, sir. Thank you so much, Arun ji. Thank you, Thank you, sir. Sanjay ji. God bless. Very Karachi, thank you so much. Thank you, darling. Anup Thanks ji. a lot. Bye, Sanjay ji. God bless. Bye, bye. Bye, Ravi Kala ji. Recording Thank बंद you. करा दीजिए Yeah, आप, bye. recording बंद करा दीजिए, then we can still be on Zoom. Recording बंद करा दीजिए। So